کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا. اور یسوع نے کہا کہ تم لوگوں سے یہ کراتے ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس چیز کی میرے باپ کو مجھ سے طلب تھی یا امید تھی میری ماں کو، وہ میں نے خدا کی نظر کر دی ہے. اب میں اپنے باپ کی اور ماں کی عزت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے وہ وقت خدا کو دے دی ہے، میں نے وہ روپیہ خدا کو دے دی ہے، میں نے وہ جو جس کی ان کو طلب تھی، مجھ سے امید تھی، وہ حصہ میں نے خدا کو دے دیا ہے. اور خداوند یسوع نے کہا کہ تم اپنی روایت سے خدا کے کلام کو باطل ٹھہراتے ہو، تم ٹال دیتے ہو، کیونکہ خدا کا کلام تو یہ فرماتا ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا، تب تیری عمر دراز ہوگی، تب تیرا زمین پر بھلا ہوگا. اور تم کہتے ہو کہ جو کچھ ہم نے ماں اور باپ کے حصے میں آنا تھا، جو وقت آنا تھا، جو روپیہ آنا تھا، وہ خدا کی نظر کر دیا ہے. تو یسوع نے کہا کہ تم اپنی روایت سے خدا کے کلام کو باطل کرتے ہو. اور آج کل بھی ایسا ہی ہے، لوگ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ان کا حق ادا نہیں کرتے. اگرچہ بیوی خدا نے آپ کے لیے ٹھہرائی ہے، اگرچہ خدا نے آپ کو بچے دیے ہیں، ان کے فرائض ہیں اور وہ ادا کرنے ہیں، لیکن ماں باپ کا حق جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. اور یہ 10 حکموں میں خدا نے یہ خاص حکم دیا ہے کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تب تیرا بھلا ہوگا، تب تیری عمر زمین پر دراز ہوگی، تب تجھے برکتیں ملے گی، تب تو زمین پر سرفراز ہوگا. لیکن تم کہتے ہو کہ جو کچھ ہم نے ماں باپ کو دینا تھا وہ خدا کی نظر ہو گیا. میرے عزیز، آج بھی بہت سے لوگ ترس رہے ہیں ماں باپ ان کے پاس اگر نہیں اور بچوں کے پاس ہے. میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے، بہت سے لوگ یہ اقرار کر رہے ہیں اور یہ اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارے لیے نہیں ہے. شاید وہ اپنے سسرال والوں کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کے لیے نہیں کرتے. اگر بیٹے کی تنخواہ 45,000 ہے اور ماں باپ کو 15,000 دیتے ہیں، جبکہ بچوں کی ذمہ داریاں بھی ماں باپ پر ہیں، کھانے پینے کے اخراجات ان پر ہیں، لیکن جو ایسا کرتا ہے، کیا یہ انصاف کے تقاضے ہیں؟ میں آپ کو ایک سچی کہانی بتانے لگا ہوں. تقریباً 8-9 سال ہو گئے ہوں گے. میں نے ایک جگہ پر پیغام سنایا، اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے. اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا ابس ہے. مجھے نہیں پتا تھا کسی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، لیکن جب میں نے یہ پیغام دیا اور تقریباً 1 ہفتے یا 8 دن کے بعد میں چھت پر سویا ہوا تھا، گرمیاں تھیں، فون آیا. فون میں نے سنا، وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جس دن سے یہ کلام سنا ہے، صبح اٹھتے ہی یہ میرے سامنے آ جاتا ہے، ذہن میں آ جاتا ہے. مجھے کبھی کلام یاد نہیں ہوا، میں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، لیکن 8-10 دن ہوئے ہیں جب سے میں نے یہ کلام سنا ہے، یہ میرے سامنے سے نہیں ہٹتا. اس نے بتایا کہ گھر والوں نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے سارے گھر کا، اور میں نے
ये चाहे मैं अपनी जेब खर्च समझ लूं या उसमें से लिया, लेकिन मैंने उस रकम में से, उन सारे मामलात में से इतने पैसे अलग किए हैं, अपना बैंक बैलेंस बनाया है, और उसमें से 1 लाख रुपया मेरे अकाउंट से चोरी हो गया है। मैंने बहुत भाग दौड़ की है, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। और मैं ये 8-10 दिन से जब ये गौर कर रहा हूं, और मुझसे ये कलाम जो है मेरी नजरों से हटता नहीं, मेरे ज़हन से निकलता नहीं, मेरा दिल इसकी तरफ जुड़ा हुआ है, और मैं ये महसूस कर चुका हूं, जान चुका हूं कि मैंने ये जो किया है गलत किया है। अगर मेरे खानदान ने मुझ पर एतमाद किया है, अगर ये सारे जो मसाइल हैं मैं हल कर रहा हूं, तो ये जो मैंने अलग किया है ये मैंने गलत किया है। और मुझे उस दिन से, जब से मैंने ये कलाम सुना है, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अवश्य है। और मेरा जो 1 लाख चोरी हो गया है और वो मुझे नहीं मिल सका अकाउंट में से, तो मैं बड़ा बेचैन हूं कि ये मैंने गलत किया है। और उसने यहां तक कहा कि ये जो बाकी 1,80,000 है, ये आप लें और अपने प्रोग्राम पर खर्च करें, ताकि मैं इत्मीनान से हो जाऊं, चैन से हो जाऊं। लेकिन मैंने उससे कहा कि अगर तू चैन से होना चाहता है तो ये ना खुदा का पैसा है ना हमारा है, ये तेरे घराने का पैसा है, और तू अपने घर पर ही इसे खर्च कर। मेरे अजीज, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं करते, अपना बैंक बैलेंस बनाते हैं, लेकिन वो भी नहीं रह सकता, क्योंकि जब हम इंसाफ नहीं करते, खुदा यीशु ने मत्ती के इंजील के 15वें बाब में ये वाज़ेह फरमाया कि जो कुछ तुम्हारे माँ बाप का हक है, जो कुछ उनकी खिदमत का हक है, जो कुछ उनके लिए वक्त का हक है, वो तुम कहते हो हमने खुदा को दे दिया है, हमने खुदा की खिदमत में सर्फ कर दिया है, और अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। और जब कलाम फरमाता है माँ बाप की इज्जत नहीं करते, तो भला कैसे होगा, उम्र की दराजी कैसे होगी, जिंदगी में इत्मीनान कैसा होगा। 2,80,000 रुपया अपना बैंक बैलेंस तो बना लिया, लेकिन जब पता चला कि ये सब कुछ गलत है, तो फिर इत्मीनान जाता रहा, बेचैनी आ गई। मेरे अजीज, आज भी बहुत से लोगों के लिए ये कलाम है, बहुत से लोगों की जिंदगी में खुदा ये कलाम कर रहा है कि अगर आपके पास हक है माँ बाप का तो उसे अदा करें। ये ना कहें कि हम दुआ करते हैं, हम प्रस्तुत करते हैं, हम मुनादी करते हैं, हमने सारा वक्त इसी चीज पर खर्च कर दिया है, हमने खुदा के लिए खर्च कर दिया है। हमें अपने वालिदैन का हक अदा करना है। अगर वालिदैन खुश नहीं हैं, तो वो बरकतें जो वालिदैन के साथ जुड़ी हुई हैं, हम उनसे महरूम रहेंगे। हम कभी भी इत्मीनान से जिंदगी नहीं गुजारेंगे, क्योंकि कलाम खुदा में खुदा यीशु ने कहा कि तुम, अगर हम जो कुछ ये 23 आयत में पढ़ा है, 23 बाब की 23 आयत में, कि तुम रियाकार हो, फकीरों और फरीसियों, पुदीने और सौंफ और जीरा पर तो दया देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों को छोड़ दिया है। ना तो इंसाफ करते हो, ना तुम में रहम है, और ना ही तुम में ईमान है। अगरचे दिन रात हम दुआएं करें, प्रस्तुत करें, सखावतें करें, क्या कुछ करें, अगर उस शख्स की तरह अपना अलग बैंक बैलेंस बनाते हैं, जबकि आप पर भरोसा है, जबकि आपका हक है कि जब आपके अखराजात घराने पर हैं, तो फिर आप भी जो मुनासिब है वो रखें और बाकी अपने वालिदैन को अदा करें। शायद आपके
कर अपना वक्त गुजार रहे हैं, तो आपका बैलेंस जो है वो किस काम आएगा? ये सिर्फ बेटों के लिए नहीं है, ये बहुओं के लिए है, बेटियों के लिए है। आज भी अगर किसी बहू के पास खर्च है और उसकी सास को जरूरत है और वो मोहल्ले में लोगों से मांगती है या किसी तरीके से परेशान है, अगर दानिशमंद बहू है तो उसे अपनी सास की जरूरत को पूरा करना है। और अगर ऐसा करेगी तो फिर आने वाले वक्त में आपके लिए बरकतों के अंबार होंगे। रूत की कहानी से आप वाकिफ हैं। उसने जो कुछ खेतों में उससे मिला, उसने कुछ खुद खाया, जो बोएज के नौकरों ने उनसे दोपहर को खाने को दिया, कुछ उसने खुद खाया, कुछ अपनी सास के लिए रख छोड़ा। जो अपने घराने का फिक्र नहीं करते, आने वाले वक्त में परेशानियों को अपने लिए बोते हैं। कलामे खुदा में लिखा है, जो कुछ आप बोएंगे वही काटेंगे। अगर आपने इंसाफ के तकाजों को पूरा किया है, अगर आप इंसाफ करते हैं, खुदा यीशु ने कहा कि तुमने इंसाफ, रहम और ईमान को छोड़ दिया है। जो शख्स अपने वालिदैन पर रहम नहीं करता, वो दूसरों पर किस तरह रहम करेगा? जो अपने वालिदैन की और उनका हक अदा नहीं करता, वो दूसरों के लिए क्या रहम करेगा? जो अपने बहन भाइयों पर रहम नहीं करता, वो दूसरों पर कैसे रहम करेगा? हम कहें कि हम बड़े ईमानदार हैं, लेकिन कलामे खुदा फरमाता है, अगर हम इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं करते तो हम ईमानदार नहीं हैं। आपको पता है, जब अब्राहम 318 जवानों को साथ लेकर सदूम के मुखालिफ बादशाहों को जाकर उनका पीछा करता है, ताक़ब करता है, उनके साथ जंग करता है, जीतता है, अपने भतीजे लूत को और सदूम के लोगों को उनसे छुड़ाकर वो दौलत जो लूट कर ले गए थे वो वापस लाता है। और जब आता है तो सदूम का बादशाह कहता है, उसकी शुक्रगुजारी करता है और कहता है कि ये इंसानी जाने जो है ये मुझे दे और ये जो दौलत है सब तू ले जा। तो अब्राहम ने कहा, मैं इसमें से एक धागा भी नहीं लूंगा, ताकि कोई ये ना कहे कि अब्राहम को इस लूट की दौलत में दौलतमंद बनाया है। उसने कहा कि मैं अपने खुदा पर भरोसा रखता हूं। मेरे अजीज, जो इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हैं वो ईमानदार हैं। अगर हम याकूब की कहानी को देखें तो याकूब कहता है कि मैंने, जब वो लाबन की मजदूरी करता है, लाबन के पास मजदूरी पर काम कर रहा है, पहले 14 साल तो उसने अपनी दोनों बीवियों के लिए भेड़ें चुराई और बाकी 6 साल जो थे वो उसने भेड़ बकरियों के लिए लाबन की खिदमत की। और लाबन के साथ उसने ये तय किया कि अगर भेड़ बकरियां चितले बच्चे दें तो मेरे होंगे, बाकी तेरे होंगे। तो लाबन ने 10 बार उसकी मजदूरी बदली। जब भेड़ बकरियां चितले बच्चे देती तो लाबन कहता ये मेरे हैं, अब दारीदार तेरे होंगे। तो फिर भेड़ बकरियां दारीदार बच्चे देने शुरू कर देती। जब दारीदार देती तो फिर वो बदल जाता। याकूब से कहता नहीं, अब ये रंग मेरा है और दूसरा तेरा है। और कलामे खुदा में अगर हम इसकी वजाहत को देखें तो जब याकूब अपने बीवी बच्चों को लेकर चला गया, लाबन को ना बताया, लाबन को तीसरे दिन पता लगा, वो अपने लोगों को साथ लेकर उसका पीछा करता है। और रात को लाबन को खुदा ने डांटा कि तू याकूब को बुरा और भला ना कहना, क्योंकि वो मेरा बंदा है। और जब उसने लाबन के साथ जो बातें उनकी वहां पर हुई, उनमें याकूब साफ निकला। तो
मैंने अपने मकदूर पर पूरे दिल से तेरी खिदमत की। मैं रात को सर्दी में और दिन को गर्मी में मरा, मैंने अपनी आंखों में नींद न आने दी। मैंने जो कुछ दरिंदों ने फाड़ा वो तेरे पास लेकर आया। मैंने इंसाफ के तकाजों को पूरा किया, लेकिन तूने 10 बार मेरी मजदूरी बदली। लेकिन अब्राहम के खुदा ने, जिसका इसहाक रब मानता था, उसने मुझे तेरे हाथ से नुकसान पहुंचने ना दिया। याकूब कहता है कि खुदा ने मुझे रात को ख्वाब में दिखाया कि जिन बकरों और बर्रों से बकरियां और भेड़ें हमला हो रही हैं, वो उसी रंग के होते हैं जो तेरे हिस्से में आता है। लाबन चाहे 10 बार तेरी मजदूरी बदले, मैं तुझे नुकसान पहुंचने। मेरे अजीज, जिन लोगों ने इंसाफ के तकाजों को पूरा किया, खुदा उनकी जिंदगी में नुकसान नहीं पहुंचने देता। खुदा किसी को उनको दांव नहीं लगाने देता। खुदा यीशु ने कहा, तुम अपनी रवायत से मेरे हुक्मों को टालते हो। तुम कहते हो जो कुछ माँ बाप के हिस्से में आना था, जो वक्त, जो रुपया, जो खिदमत, वो हमने खुदा के हिस्से में डाल दी है, वो हमने खुदा के लिए वक्फ कर दी है। खुदा यीशु ने कहा कि तुम अपनी रवायत से मेरे हुक्मों को टालते हो। तुम सौंफ और सीरा और पुदीना पर तो दयाकी देते हो, लेकिन इंसाफ और रहम और ईमान को तुमने छोड़ दिया है। मेरे अजीज, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, और जितने लोग इस कलाम को सुनने वाले हैं, मैं अब सबको ये आगाह करना चाहता हूं कि अगर हम इंसाफ के तकाजों को पूरा करेंगे तो फिर यकीनन हम जिंदगी में बरकत पाएंगे, हम जिंदगी में सरफराज होंगे और हम खुदा की नजदीकी को हासिल करेंगे। क्योंकि जब हम रोजा रखते हैं और रोजे का यही मकसद होता है कि हम खुदा के चेहरे की आरज़ू करते हैं, खुदा के दीदार की आरज़ू करते हैं, खुदा की कुर्बत में आने की आरज़ू करते हैं और खुदा से बरकत पाने की आरज़ू करते हैं। और खुदा यीशु ने कहा, अगर तुम वो रोजा रखो जो खुदा को पसंद है, तो यकीनन तुम्हारे लिए अजर होगा। लेकिन अगर दिखावे के लिए करते हैं तो फिर हम अपना अजर पा चुके। हमने दिखावा कर लिया, लोगों ने देख लिया और हमें इस जमीन पर, यहाँ पर तो भले भले शाबाश वाह 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 हो सकती है, लेकिन खुदा के पास हमारे लिए उसका कुछ अजर नहीं है। इसलिए मेरे अजीज, रोजा बड़ी खास चीज है। रोजा हमारी जिंदगी को पाकीज़गी बख्शता है। हम बाहर से तो अपने आप को साफ करते हैं। खुदा यीशु ने कहा, तुम सफेदी फिरी हुई कब्रें हो, बाहर से तो चमकती दमकती हो, लेकिन अंदर मुर्दों की हड्डियां हैं, गलासते हैं। हमारे बातन जो हैं उनमें हरामकारियां, चोरियां, नपाकियां, ज़नाकारियां, बदकारियां और बहुत से ऐसे काम छुपे हुए हैं। लेकिन अगर हम खुदावन के लायक रोजा रखें तो फिर ये रोजा हमारे बातन को साफ करता है, हमें पाकीज़गी बख्शता है, हमें खुदा की कुर्बत में लाता है, हमें खुदा की नजदीकी बख्शता है। और फिर अगर हम इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी बाबरकत बात है। आए इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आए जिंदगी में इंसाफ के तकाजों को पूरा करें। अगर हमारी जिंदगी में इंसाफ नहीं, हमने अपनी जिंदगी में इंसाफ नहीं किया, तो फिर हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो फिर कल को क्या होगा, इससे पहले कि ऐसा हो, हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है,
हमें खुदा के हजूर आजिज़ होना है, हमें रोजा रख कर खुदा से मांगना है, हमें खुदा से फरियाद करनी है, हमें माफी का तलबगार होना है। और हमारी मरकजी ऐप भी यही है, मुकद्दस महफिल फराहम करो, तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों और शीरकारों को इकट्ठा करो, दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल आए। कहें खुदा के खादम भी गिरयाजारी करें, कहें ऐ खुदा अपने लोगों पर रहम कर। मेरे अजीज, हमें आज इस वक्त खुदा से रहम मांगना है। जो कुछ हम कर चुके हैं, जो कुछ हमने किया है, अगर इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं किया तो भी उससे रहम मांगना है, ताकि आगे को उसकी मर्जी को पूरा करें। और जो कुछ हमने नहीं किया, अगर मौका मिले तो उसे जरूर करने की कोशिश करें। और खुदा यकीनन अपने मोहब्बत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, मांगने वालों को अता करता है। आए अपनी आंखों को बंद करें, आए अपने सरों को झुकाएं, आए इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। खुदा यीशु ने कहा कि तुम पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दयाकी देते हो, लेकिन शरीयत की भारी बातों को, इंसाफ, रहम और ईमान को छोड़ दिया है। आए अपने ईमान को ताजगी बख्शने के लिए, ईमान को पाने के लिए उससे रहम की अपील करें। प्यारी बहन से गुजारिश है कि वो सामने आए।